Hello, friends. As per our schedule, we are going to start the gymnosperms. As you know, this is a part of the plant kingdom, and we have already discussed the class Alga, the Bryophyta, the Pteridophyta, and today we are going to continue it with gymnosperms and angiosperms in two separate videos. So, let's start this concept of gymnosperms. As the name suggests, gymnosperms is formed from two terms, जिसमें से gymnos का मतलब होता है naked and sperma means seeds, and these are the plants जिसमें ovules जो हैं ये particularly ovary में enclosed नहीं होते और बाहर की तरफ रहते हैं before and after fertilization. The seeds that develop post fertilization are not covered. The main peculiar feature of this gymnosperm is that जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो सीड्स हैं दे आर नेकेड. नाउ जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मीडियम साइज ट्रीज़ होते हैं या थोड़े से टॉल ट्रीज़ हो सकते हैं और श्रब्स भी हो सकती हैं. एक सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म दैट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क्स क्वेश्चन इज नेम द जायंट रेडवुड ट्री और नेम द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म. सो यू मस्ट रिमेंबर दैट द टॉलेस्ट tree of the gymnosperm tree species is Sequoia. The roots are generally tap roots. It should be noted that the roots of the gymnosperms are generally tap roots, and roots in some genera having fungal association in the form of mycorrhiza, which I've already discussed in some previous videos about the fungal association with the alga, is called as symbiotic association, and the fungal association with the roots of higher plants is called mycorrhiza, and it can be seen most prominently in Pinus, which is a gymnosperm. While in some others also, like Cycas, they have small specialized roots called coralloid roots. Very important, what are coralloid roots? कॉरोलॉइड रूट्स एक ऐसी रूट्स होती हैं जिनके साथ सियानोबैक्टीरिया होता है, एंड नॉर्मली द रूट्स आर ब्राउन इन कलर, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस बैक्टीरिया दे बिकम्स ब्लू ग्रीन इन कलर. सो इट इज़ वेरी गुड टू सी these type of roots. This is a specialized root, so this is a specific feature which is being given to the cycas. एंड द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड. इनकी स्टेम्स में ब्रांचिंग नहीं होती, सिर्फ सिंगल ब्रांच होती है और उसी के ऊपर लीव्स होती हैं. उसका एग्जाम्पल है साइकस, बट दे कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, और उसके एग्जाम्पल्स हैं पाइनस एंड सेड्रस. इट कैन बी आस्क्ड इन अ क्वेश्चन पेपर दैट नेम द एग्जाम्पल ऑफ एन अनब्रांच्ड जिम्नोस्पर्म. सो इट विल बी साइकस एंड नेम एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच्ड gymnosperm, then it could be Pinus and Cedrus. So the leaves may be simple or compound. We will later on in the next chapters, that is morphology and anatomy, we will discuss the how the shapes of the leaves are simple and compound. Normally teachers do what, before doing this chapter they start with the morphology, so that the student can properly identify what are the various features of the stem, leaves and roots, etc. But here no worries, we will start later on it, but simply I will tell you in brief that what are the simple and compound leaves. Normally जो नीम के पत्ते में आप लीफ देखते हैं जिसमें एक मिडरिब होती है और साइडों में बहुत सारी पत्तियां होती हैं, दैट लीफ इज़ कॉल्ड एज कंपाउंड. और अगर आप एक रोज़ के प्लांट की लीफ देखें या सिंपल अमरूद के पत्ता देखें या फिर किसी भी सिंपल प्लांट को देखें तो दैट विल बी अ सिंपल लीफ, राइट. इन साइकस द पिनेट लीव परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स. अब जो ये साइकस और पाइनस हैं इनके अंदर पिनेट लीव्स होती हैं. पिनेट मतलब नीडल लाइक, पिन लाइक होती हैं, and it persists for few years, and the leaves in gymnosperms they can withstand high temperature. ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पर रहती हैं क्योंकि बहुत ही रफ, टफ एंड पिन लाइक होती हैं, बहुत नीडल लाइक होती हैं, और ये पिंच भी करती हैं, हाई ह्यूमिडिटी को टॉलरेट कर सकती हैं, विंड को भी टॉलरेट कर सकती हैं, टूटती नहीं हैं, बिल्कुल खजूर की लीव्स की तरह, डेट पाम की तरह. सिमिलरली इन कॉनिफर्स जिनकी नीडल लाइक लीव्स होती हैं, पाइनस के अंदर आपको ये प्रॉपरली दिखेगा नीडल लाइक लीव्स, और ये सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है. इट रिड्यूसेस द सरफेस एरिया, एंड यू नो दैट दीज प्लांट्स दे आर प्रेजेंट नॉर्मली इन डेजर्ट एरियाज. इट मीन्स दे आर जीरोफिटिक, एंड जीरोफिटिक प्लांट्स में अगर वो डेजर्ट एरियाज में रह रहे हैं तो श्योरली देर विल बी नॉट प्लेंटी ऑफ वाटर, एंड इफ़ देर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर देन देर मस्ट बी अ मैकेनिज्म इन अ प्लांट जिससे कि वो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करे, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसपिरेशन. बिकॉज जितने भी प्लांट्स हैं दे डू ट्रांसपिरेशन. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम ट्रांसपिरेशन क्या करेगा प्लांट, इट विल डू दी
reduction in the surface area, and that is done by the reduction in the shape of the leaves, that is reducing the shape of leaves into needle like. So these three lines are very important. Please remember these lines. What are the extra features of the gymnosperms that help them to withstand the extremes of you can say extremes of conditions? So the first is the needle like leaves. These reduces the surface area for transpiration and help them survive in desert areas or xerophytic condition. Secondly, they have thick cuticle so that transpiration जो है वो stem से ना हो. If you are a continual viewer of all my videos, I have properly described it in some videos that there is a loss of water from the plant from leaves as well as from stem, and it is due to the structures called lenticels जो कि हम anatomy में डिस्कस करेंगे. So thick cuticle and sunken stomata. Sunken stomata means the highly developed stomata which have some extra features ताकि water का loss ना हो. So it is in the shape of these, and all these features are important in case of gymnosperm जो उन्हें xerophytic conditions में रखने में help करते हैं. Now talking about the life cycle and the mode of reproduction, we are going to discuss here. Let's start. Gymnosperms are heterosporous. As I have already told you in Bryophyta, in Pteridophyta, that the spores in which the spores are of two dissimilar type, two different types, it is called as heterosporous. In the same case, gymnosperms are having two types of spores. The male spores are called microspores and the female spores are called megaspores, both of which are haploid, and haploid means they have n number of chromosomes. The two kinds of spores are produced within the sporangia. ये दोनों तरह की स्पोर्स स्पोरेंजिया में ही बनती हैं और स्पोरोफिल्स पर बनती हैं. एंड स्पोरोफिल्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ. इट इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसके नीचे एक कोन होता है या स्ट्रॉबलाई होता है या एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होती हैं. तो ये स्पोरेंजिया स्पायरली स्पोरोफिल्स के ऊपर अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट कोन्स. ये स्ट्रॉबलाई जो हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, ये मेल स्ट्रॉबलाई होते हैं एंड दे डेवलप इनटू मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन, जो कि बहुत हाईली रिड्यूस हो जाती है लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स में, और इस रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट को हम पोलन ग्रेन कहते हैं. अब ये जो डेवलपमेंट है ये माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में ही होती है. सिमिलरली फीमेल्स की बात करें तो मेगास्पोरोफिल्स यानी पत्तियों के ऊपर मेगास्पोरेंजिया होगा और मेगास्पोरेंजिया के अंदर ओव्यूल्स होंगे या मेगास्पोर्स होंगे. नाउ द मेल और फीमेल कॉन्स और स्ट्रॉबलाई वो सेम ट्री पर भी हो सकते हैं. तो अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे ऐसा कि द प्लांट विच इज़ हैविंग मेल एंड फीमेल कॉन्स ऑन द सेम ट्री, तो आप कहेंगे दैट विल बी पाइनस. एंड दिस इज़ द peculiar structure of cycas and this is the structure of pinus जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके झाड़ू जैसे तीले होते हैं. दिस इज़ द पाइनस और इसमें मेल और फीमेल कोन्स आपको अलग अलग दिखाई देंगे. फीमेल कोन्स लंबे दिखाई देंगे, मेल कोन्स लंबे दिखाई देंगे एंड फीमेल कोन्स राउंडेड दिखाई देंगे. इन द सेम वे however in cycas male cones or female cones यानी male and female plant are different, they are not same. So megaspore mother cell जब differentiate होता है न्यूक्लियस के सेल्स में, तो न्यूक्लियस जो है उसके अराउंड एक एनवेलप होता है और एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, उसे हम ओव्यूल कहते हैं. ओव्यूल्स क्लस्टर्ड करके फीमेल कोन बनाते हैं एंड देन डिवाइड करके फाइनली 4 मेगास्पोर्स बनाते हैं. तो आपने ये याद रखना है कि मेगास्पोर मदर सेल एक ऐसा मदर सेल है उसके स्पोरेंजिया में जो डिवाइड करता है और 4 मेगास्पोर्स बनाता है, और उसी एक 4 मेगास्पोर्स में से फीमेल गेमेटोफाइट बनता है जो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया होते हैं. एंड द मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो भी मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है. अब एज यू नो कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है ये. जिम्नोस्पर्म्स में मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट दे डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया. ये स्पोरोफाइट्स के अंदर ही रहते हैं. एंड व्हेन द पॉलन ग्रेन इज रिलीज्ड एंड एयर करंट से वो ओव्यूल्स के कांटेक्ट में आती है तो पॉलन ट्यूब डेवलप होती है एंड दैट पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज ऑल द कंटेंट्स, ऑल द मेल गैमेट्स इनटू द आर्किगोनिया. एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन zygote develops into embryo and ovules develop into seed. Remember, zygote embryo बनेगा और ovule seeds बनेंगे और ये seeds covered नहीं होते. That is why it is called as gymnosperms.
Now there are three important examples of this. The first one is cycas. ये आपको ज़्यादातर पार्क्स में लगा हुआ दिखेगा because it is an ornamental plant. Pinus, it is found in mostly in hill stations. ये आपको दिखाई देगा ही देगा, आप मूवीज़ में भी देख सकते हैं, जब भी हिल स्टेशंस दिखाते हैं तो उसमें ये पाइनस ज़रूर होता है. देन देर इज़ गिंको. गिंको जो है, इट इज़ फुल नेम इज़ गिंको बायलॉबा, and it is having a dwarf shoot, a long shoot, and some seeds. So this is the gymnosperms, and we have learnt all the life cycles and the spore formation, reproduction, along with peculiar features of gymnosperms. So I hope you like this video. Please subscribe to my channel if you're a new viewer, and like and share my video. Thank you. Have a nice day.